बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल को हल करना है। x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0. It is a first order and first degree differential equation. We have to solve this differential equation by using different methods. The first method is variable separating method. So separating the variables, we get x dy is equal to y dx. This term have been transposed. Now separating all the variables, we get 1 over y dy is equal to 1 over x dx. The variables have been separated. Now integrating both sides, we get integral 1 over y dy is equal to integral 1 over x dx. Here derivative of y with respect to y is 1. Similarly, derivative of x with respect to x is 1. Here we have the rule integral of the quotient of two functions where numerator is derivative of denominator. Then integral of such fraction, such quotient equal to log of denominator. So here integral 1 over y dy is equal to log of denominator. Similarly, here integral is equal to log of denominator plus some constant. The constant used here is log c. Now log x plus log c is equal to log cx. Cancelling log, this log and this log will be cancelled together, and we get y equal to cx. This is the general solution of this first order and first degree differential equation. Now we have to solve this differential equation by another method. Now we have to check whether it is homogeneous or not. Check 1. This is differential equation 1. Check 1 is homogeneous differential equation. Now this is the second method. Here m, this minus y is equal to m, and this x is equal to n. Homogeneous functions. These two are homogeneous functions of the same degree. Here this m is homogeneous function of degree 1. Similarly, n is homogeneous function of degree 1. Both are homogeneous function of the same degree. Thus 1 is homogeneous differential equation of degree 0. Therefore this equation is homogeneous differential equation of degree 0 because the function m and the function n both are homogeneous function of the same degree from 1. From this equation we can write x dy is equal to y dx. Now we get dy by d is equal to y divided by x. Any differential equation which is expressible in the form of y over x is called homogeneous differential equation. Here the above differential equation 1 have been expressed in terms of y over x. Thus this equation is homogeneous differential equation of degree 1. Now for the solution we take y over x equal to v or y equal to vx. Differentiating both sides we get dy by dx equal to v plus x dv by dx. This equation is homogeneous differential equation of degree 0, and we have to solve. Dy by dx equal to v plus x dv by dx from 2. Now we have to put the values. We have to put the values here. This is equation 2. So putting the values here, putting y over x equal to v and dy by dx equal to v plus x dv by dx in equation 2 we get. This is the value of equation 2 after substituting these values. Now cancelling the similar terms, this term will be cancelled with this term. We get x dv by dx equal to 0. Now we get dv is equal to 0. Integrating both sides, this is the integration. This here the integration will be equal to v is equal to c. Integral of 0 is c. Putting value of v, which is y over x equal to c. Hence y is equal to cx. This is the general solution of the differential equation 1. So by the second method we got the same general solution. So let's start. Check 1 is exact differential equation. उसी differential equation में m हमारे पास माइनस y था और n हमारे पास x था. Differentiating this equation with respect to y, so we get this minus will be here
and derivative of y with respect to y is 1. Similarly, differentiating both sides with respect to x, so del n over del x is equal to 1. We see that del m over del y not equal to del n over del x, therefore equation 1 is non-exact differential equation. जो equation x dy minus y dx is equal to 0 is non-exact differential equation. जब कभी हमारे पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो एक ऐसा फैक्टर जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, द फैक्टर विच मेक्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट वन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, अब हम चेक करते हैं कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर से इसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये हल होता है कि नहीं. मल्टीप्लाइंग 1 बाई 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो दोनों साइड को हमने 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पे क्या है, कोशेंट रूल. अप्लाइंग कोशेंट रूल ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ डी डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स. डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स क्या है, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पे है 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया. इसी रिजल्ट को हमने कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशियल से लिखा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है. अब यहाँ पे इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल साइन एंड दिस विल कैंसल, वी गेट y ओवर x इक्वल टू c और y इज इक्वल टू cx. अब हमें जब हमने 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें वो सेम आंसर मिला. जब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें यही जो जनरल सोल्यूशन है ये ऑलरेडी हमने 2 मेथड से हासिल किया है, अभी ये तीसरी मेथड से हमें मिला. अब हम क्या करते हैं, आल्सो मल्टीप्लाई 1 बाई 1 ओवर वाई स्क्वायर. अब हम देखते हैं कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर के बाद 1 ओवर वाई स्क्वायर से हमें क्या मिलता है. तो दोनों साइड को हमने 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. अब इन दोनों से हमने माइनस को कॉमन निकाला और यहाँ पे 0 आ गया. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, तो ये इस तरह आ गया और ये 0 वापस आ गया. अब कोशेंट रूल, इसी पे हम कोशेंट रूल यूज़ करते हैं. डी मीन्स डिफरेंशियल, दिस x इज न्यूमरेटर, दिस y इज डिनोमिनेटर, सो हियर वी हैव डिफरेंशियल ऑफ द कोशेंट x डिवाइड बाई y. ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास x डिवाइड बाई y का डिफरेंशियल है. अब यहाँ पे दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं तो y बटा x इक्वल टू c आ गया, या y ओवर x इज इक्वल टू, इसको हम x बटा y, x ओवर y इज इक्वल टू c आ गया, x डिवाइड बाई y इक्वल टू c. अब इसको हम y ओवर x इक्वल 1 ओवर c लिखते हैं, 1 ओवर c इज इक्वल टू c1 लिखते हैं, और y इज इक्वल टू c1x. तो y इज इक्वल टू यहाँ पे cx आ गया था. पिछली स्लाइड में भी हमने इसी आंसर को मालूम किया था, और अब यहाँ पे y इज इक्वल टू c1x दोबारा हमने मालूम किया. ये चौथी दफ़ा है. दिस इज़ दी 4th अटेम्प्ट टू रीच टू द सेम जनरल सोल्यूशन. नेक्स्ट इसी इक्वेशन को अब हम इसी से मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाइंग बाय दिस, दोनों साइड को इसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है, सिम्प्लिफिकेशन से ये आता है. अब इसी को हम 2 तरीक़ों से, इससे और इससे हल करते हैं. अब यहाँ पे क्या है, 1 ओवर वाई डी वाई बराबर है डिफरेंशियल ऑफ log y. इस तरह ये बराबर है डिफरेंशियल ऑफ log x. यहाँ से d कॉमन निकाले. अब log ऑफ y माइनस log x बराबर है log y ओवर x, और यहाँ डिफरेंशियल है. अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, log y ओवर x आएगा, यहाँ इंटीग्रल 0c आएगा. अब इसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो y ओवर x विल बी इक्वल टू e पावर c, और e पावर c, लेट्स इक्वेट e पावर c इक्वल टू c1. तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू c1x. और इसी को हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू log y. इसी तरह इंटीग्रल 1 ओवर x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू c. अब इन दोनों को हम log y ओवर x लिखते हैं इज इक्वल टू c, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में y ओवर x इज इक्वल टू e पावर c आएगा और y इक्वल टू c1x. तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन obtained by multiplying the given differential equation by 1 over xy. This is the 5th attempt.
to reach the same general x dy minus y dx equal to 0. ये हमारे पास एग्जाम्पल था, दिस वाज द एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्वेश्चन था. वी फाउंड दैट the above first order and first degree linear differential equation is variable separable whose general solution found as y equal to cx. वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये सोल्यूशन हमें मिला था. और नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमें क्या मिला, नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके बारे में हमें ये मालूम हुआ कि इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 having the general solution as y equal to cx. नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके बारे में हमें क्या मालूम हुआ, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें ये नेसेसरी कंडीशन फेल हुआ था, सेटिस्फाई नहीं हुआ था. द फैक्टर विच मेक्स द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एज एग्जैक्ट 1 is called the integrating factor. जो फैक्टर किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट करता है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं. ये नॉन एग्जैक्ट था लेकिन इसको हमने 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया. Here 1 over x square, 1 over y square, 1 over xy are the integrating factors which make the left hand side of differential equation 1 as a differential of some functions like y over x. जब इसको हमने y ओवर x 1 ओवर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x मिला. जब इसी इक्वेशन को हमने 1 ओवर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y मिला. जब इसी डिफरेंशियल को हमने 1/xy से मल्टीप्लाई किया तो हमें डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ y ओवर x मिला. बाय यूजिंग एनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. बाय यूजिंग एनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी फाउंड द जनरल सोल्यूशन एज y इक्वल टू cx. तो इसी एग्जांपल को हमने मुख्तलिफ मेथड से हल किया, वेरिएबल सेपरेबल से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से. फिर चूँकि नॉन एग्जैक्ट था तो इसके लिए हमने 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिटेक्ट किए और तीनों की मदद से हमें सेम जनरल सोल्यूशन मिला.